Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. As you are already studied the staffing and yesterday we have learned the meaning, the importance of staffing. So hope the importance and features would be very clear to you. We haven't started features, so today we are starting with the features. Now what is features of staffing? First, that is important managerial function. See, important managerial functions. So, before that, you need to understand that there are five functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So, staffing is very important. Okay, other management functions are based on staffing, because if you would be having a proper human, if you would be having a proper employees, then only other managers and other functions would be moving or would be working appropriately. Next is pervasive. Now what is pervasive? It is it is required at all level. None of the organization, or none of the level of the organization, or none of the department of the organization can work without staffing, because yesterday I also said that employees are real assets of the organization, and without employees it is not possible to implement the planning, or to achieve the objectives. So human are very essential and important element of the organization. So in organization, now we have to understand one thing here, that in organization there are three levels: top level, middle level, and lower level. So in top level, middle level, and lower level, all three levels required humans. So none of the level or departments of this level can work without humans or employees. Third is continuous. Okay, now staffing, it is a continuous process. It is nothing like that, once we have hired the employees and then we are thinking, no, now let's stop hiring the employees. Time by time you need to hire the employees, time by time you need to train them, because the current scenario and the 21st century is very demanding century. It is, every now and then you can see the change in the market. So your employees should be compatible enough, they should know deal how to deal with that market situation. So it is very much essential. Next is placement. Now, as in the initial stage only, we have understood that placing the right person on the right job is the motto. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. अगर राइट जॉब पे आपने राइट बंदे को नहीं रखा तो वो पूरा स्पॉइल हो जाएगा, पूरा मैस हो जाएगा, आपका काम कभी भी ठीक से नहीं चलता है. यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. अब ये कौन सी दोनों चीज़ें? राइट पर्सन एंड राइट जॉब. अब for an example, if I'm an MBA, okay, and if I work as a clerk, so will it worth it? Will it work it? No. ठीक है, तो मैं अगर MBA हूँ तो मेरे पास वो उसके हिसाब से जॉब होनी चाहिए, और आपका जो जॉब वैकेंट है उस पर उस हिसाब का बंदा लेके आओ कि जो आपको जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है. आप किसी को भी मत बिठा दो. Yesterday also we have taken example of business studies and SS. So the same thing they have talked here. Next is, four features were there. One, important managerial function. Second is pervasive. Third is continuous. And fourth is placement. Now next is evaluation of human resource management. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया कहाँ से, उसके फंक्शंस क्या है, वो अभी हम नहीं समझेंगे, वो हम बाद में समझेंगे. आज हम समझने वाले हैं सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि स्टाफिंग है क्या और कहाँ से शुरू होता है. तो स्टाफिंग का मीनिंग तो अब आपको पता चल गया है कि स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन ऑन राइट जॉब ऑन राइट टाइम. तो अब उसका प्रोसेस भी समझ लेते हैं.
सबसे पहला जो स्टाफिंग का है मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड एंड देयर क्वालिफिकेशंस। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं क्या करूँगी, अपने सपोज मेरा कोई फूड शॉप है, ठीक है, फूड का कोई शॉप है वेर आई एम मेकिंग बर्गर्स, राइट। अब मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि पहले कितने कितने काम है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, फिफ्थ एंड सिक्स, ऐसे 6 काम हैं। और अब मैं देखूँगी कि 6 काम के हिसाब से मेरे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो मैंने देखा कि 6 काम के हिसाब से भाई मेरे पास 1, 2, 3 और 4 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो ये 4 एम्प्लॉय ये 6 काम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करूं? तो 6 काम के लिए मुझे 6 लोग चाहिए, ठीक है, वरना मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यही मैन पावर प्लानिंग है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ कम पड़ रहे हैं तो उसको रिक्रूट कीजिए, बाहर से ले आइए, उसको हायर कीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका काम कम है, कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 1 काम, 2 काम, 3, 4, 5 काम है, लेकिन मेरे पास एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जिसका कोई मतलब नहीं है, 5 काम के लिए 6-7 लोग तो बहुत है। अब इतने एम्प्लॉयज़ तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे अगर आपका दूसरा ब्रांच है तो इन एम्प्लॉय को वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए, राइट। सो व्हाट इज़ मैन पावर प्लानिंग? कि अगर एम्प्लॉयज़ कम हैं तो उसको बाहर से आप हायर कीजिए। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं तो उसको आप प्रमोशन, ट्रांसफ़र दे सकते हैं। ये सब आगे के पॉइंट्स हैं, तब हम पढ़ेंगे। सो मैन पावर प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ मैन, कि कितने लोग चाहिए और कितने नहीं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, कि 2 लोग कम पड़ रहे हैं तो 2 लोगों की ज़रूरत है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? रिक्रूटमेंट करूँगी। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि राइट पर्सन को ढूंढना, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। आपने कभी कभी वो गुजराती न्यूज़पेपर आता है तो उसमें आपने देखा होगा જોઈએ છે, या इंग्लिश न्यूज़पेपर में आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में रिक्वायर्ड सो एंड सो पर्सन, क्वालिफिकेशन शुड बी दिस। तो वो क्या है? वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आपको इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो कि भाई हम लोगों को इतने लोगों की ज़रूरत है, तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब आप एम्प्लॉयज़ को चूज़ नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ को इनवाइट कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। उसके बाद है सिलेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हम रिक्रूटमेंट मतलब क्या है कि हम एक एडवर्टाइज दे देंगे, हम लोगों को बोलेंगे कि भाई आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आपने कभी न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो रिक्वायर्ड सो एंड सो पर्सन, दिस वुड बी द जॉब डिस्क्रिप्शन, दिस वुड बी द बेनिफिट्स, वो सब आता है। तो वो देख के लोग अप्लाई करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें से किसी एक को चूज़ किया जाता है, या तो जितना रिक्वायर्ड होगा उसको चूज़ किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मैन पावर प्लानिंग करेंगे कि काम के हिसाब से मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एडवर्टाइज देंगे, यानी रिक्रूटमेंट के लिए। और जो थर्ड पॉइंट है कि जितना हमारे पास जो भी डेटा है, या जो लोगों के रिज्यूम या सीवी, रिज्यूम का दूसरा नाम है सीवी, जिसको फुल फॉर्म है करिकुलम विटे। कॉमर्स क्लब में जब आपने 11th स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज किए थे या एक्टिविटीज़ किए थे, तब मैंने आपके सीवीज़ बनवाए थे, राइट। तो ये जो सीवी आते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होता है कि कौन सा बेस्ट एम्प्लॉय है और कौन सा हमारे जॉब के लिए राइट एम्प्लॉय है। उसके बाद है
प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओके, अब लोगों का सिलेक्शन हो गया, जैसे अभी हमने देखा कि हमने फॉर एन एग्जांपल 5 लोग थे, उसमें से हमने एक का सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? प्लेसमेंट का मतलब है कि भाई हम उसको बोल देते हैं कि यस यू कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन स्टार्ट योर जॉब। हम उसको सारा डिटेलिंग दे देंगे कि उसका जॉब क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट डे पे अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो जो बॉस होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिलियर करवाते हैं कि ये ऑफिस है, ये यहाँ पे आपको बैठना है, ये आपका काम रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। जो फर्स्ट डे पे एम्प्लॉय को दिखाया जाता है, बताया जाता है, दैट इज नॉन एज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी एम्प्लॉय होगा, वो अगर किसी जॉब में एंटर कर रहा है तो उसका ड्रीम कभी ये नहीं है कि जिस लेवल पे वो एंटर हुआ है उसी लेवल पे वो रहे। उसका हमेशा ये होगा कि वो ग्रोथ करे, आगे बढ़े। तो वो आगे कब बढ़ सकता है? कि जब टाइम बाय टाइम उसको ट्रेनिंग मिलेगा। तो ट्रेनिंग जनरली क्या होता है? ट्रेनिंग में अगर किसी का काम मशीनरीज़ पे है तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि न्यू मशीनरीज़ कैसे वर्क करेंगी, अगर मेंटेनेंस उसको करना है तो वो कैसे करेंगे। सो एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन ट्रेनिंग। सो अल्टीमेटली ट्रेनिंग हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज, your skills and attitude towards perform better. So it brings the growth, okay, it brings the development. So training is very essential. Next is performance appraisal. Now see, this is very much essential, that what is performance appraisal. In the organization employees are working, so after working it is very much essential to give their feedback that how they are working, what is their performance. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल देखता है कि एम्प्लॉय का काम देखता है, हर एक एम्प्लॉय का काम देखेगा और उसके हिसाब से उस एम्प्लॉय को वो फीडबैक देगा। कि जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में देर आर 10 एम्प्लॉयज़, ओके, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम क्या है? वो हर एक का काम देखेगा और उसके हिसाब से उनको फीडबैक देता है कि अगर एम्प्लॉय है तो उसका जो काम है वो बिलो एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है कि आउटस्टैंडिंग है। अब ये देने के पीछे रीज़न क्या है? ये देने के पीछे रीज़न ये है ताकि एम्प्लॉय को अपना परफॉर्मेंस पता चले। अगर वो बिलो एवरेज पे है तो वो एवरेज पे आने की ट्राई करेगा, एवरेज पे है तो गुड पे है तो एक्सीलेंट पे, और एक्सीलेंट पे है तो आउटस्टैंडिंग पे आने की ट्राई करेगा। ठीक है। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल अबाउट द असेसमेंट of performance of the employees to ensure that they are in the standard level. नेक्स्ट इज प्रमोशन। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, ठीक है। अब मुझे लगा कि यहाँ पे किसी का परफॉर्मेंस बड़ा आउटस्टैंडिंग है, तो अब आप उसको मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आप उनको मोटिवेट करने के लिए उनको प्रमोशन देंगे, यानी कि एक लेवल अप भेजेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ नॉन एज प्रमोशन। कि अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है या सेटिस्फाइड लगता है तो हम उसको प्रमोशन देते हैं, विच इज़ नॉन एज मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। ना व्हाट इज कंपनसेशन? कंपनसेशन का मतलब होता है इनकम। ठीक है, उनका कोई भी इनकम, अब वो सैलरी है, वो वेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। अब किसी का जॉब का या इनकम कैसे डिसाइड होता है? वो एक तो उसमें कैसे स्किल्स हैं, ठीक है, एक दूसरा उसमें उसका क्वालिफिकेशन क्या है। कई बार देखो 2 इंजीनियर्स हैं, एक होता है जो लाखों में अर्न करता है, एक होता है जिसको 8-10 हज़ार सिर्फ उसका सैलरी है। क्यों इतना डिफरेंस है सैलरी में?
क्यों? क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, यानी उसका जो जो एक्सपीरियंस है वो दोनों का अलग अलग है, इसीलिए सैलरी भी डिफ़र करता है। तो हमेशा जो सैलरी या कंपनसेशन, जो भी इनकम है, वो आपके स्किल, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सब देखता है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है। सो इन शॉर्ट, हमने ये सारे ही पॉइंट्स पढ़े स्टाफिंग प्रोसेस में: मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, प्रमोशन एंड कंपनसेशन। सो आज का ये टॉपिक यहीं हम कंप्लीट करते हैं. You just go through it. If you don't get any point, again in the next video, I'll revise all the points. So till then, thank you. Bye.